Good morning to you students. Today we will start the poem we are going to start today, and the name of the poem is A Real Santa Claus. You can open chapter number 5. Okay, page number is 37. So the name of the poem is A Real Santa Claus. Okay, so here we see, write all the gifts that you would like to receive in your Christmas stocking and then color the stocking. See, here is one stocking. First you will write all the gifts that you would like to receive on a Christmas stocking, in your Christmas stocking. Okay, you can write here also all the gifts that you would like to receive from the Santa Claus in your Christmas stocking, and then here is one stocking, you color the stocking. Okay, so now let's begin the poem. Let's move towards the poem. A Real Santa Claus. Do you often dream about something? Do you often dream about something? मतलब कि अक्सर क्या तुम लोग कुछ बारे में किसी भी चीज़ को लेके सपना देखते हो? Do you often dream about something? That often do you dream about something now let us read a poem about the dream and desire of a young boy. Now let us read a poem about the dream and desire of a young boy. Dream मतलब तो सपना and desire मतलब इच्छा. Okay, तो now let us read about the dream and desire of a young boy who is telling that Santa Claus, I hang for you by our chimney stockings too, one for me and one to go to another boy I know. So the boy is telling that Santa Claus, the boy is telling to the Santa Claus that I hang for you by our chimney stockings too. That the small boy, he hangs by the chimney 2 stockings, one for himself and one to go to another boy whom he knew. Okay, मतलब वो छोटा सा बच्चा वो बोल रहा है सेंटा क्लॉस को आधार करके कि सेंटा क्लॉस, मैं तुम्हारे लिए 2 स्टॉकिंग्स चिमनी में लटका के रखता हूँ, एक मेरे लिए और एक दूसरे लड़के के लिए जो कि जिसको मैं जानता हूँ. Okay, and one to go to another boy I know, means he knows the boy. There's a chimney in the town you have never travelled down. Should you chance to enter there, you would find a room all bare. Then the boy was telling that there is a chimney in the town. Town means it's not village also and not city also. Village से थोड़ा developed है और city से थोड़ा कम developed है, जो कि नगर है उसको टाउन बोलते हैं. ठीक है, There's a chimney in the town. तो चिमनी, अभी बच्चों चिमनी क्या है स्टूडेंट्स? what is chimney? You know, a tube like thing through which the smoke, when we cook, no, when our parents cook, mother cooks, through that, when your mother cooks, through that chimney the smoke comes out. Okay, that is called a chimney, which is put in the house. There's a chimney in the town. The boy was telling that there is a chimney in the town in which you never went. Should you chance to enter there, means should you ever think of entering there? If you go there ever, you will find a room fully complete. Bare means empty. Okay, तो बच्चा बोल रहा है कि टाउन में एक चिमनी है ऐसा भी जहाँ पे कभी भी तुम ट्रैवल नहीं किया तुमने. यू हैव नेवर ट्रैवल्ड डाउन देयर. शुड यू एवर चांस टू एंटर देयर, मतलब आर यू थिंकिंग ऑफ एवर ट्रैवलिंग डाउन देयर थ्रू द चिमनी, एंड इफ़ यू एवर गो देयर, अगर कभी भी तुम जाओ तो वहाँ पे एक रूम मिलेगा जो कि है completely bare, it's completely empty. Okay, so in the first stanza what the child is saying, in the first stanza the child says that Santa Claus, I hang over the chimney 2 stockings on every Christmas, means I hang 2 stockings there over the chimney, one for myself and one for a boy whom I know. In the second stanza he is telling that there is a chimney Santa Claus in the town
through which you never come down, means we believe that Santa Claus come to our house through the chimney, okay, comes down through the chimney and gives gift for us. हम ये बिलीव करते हैं कि सेंटा क्लॉज चिमनी के थ्रू नीचे उतरते हैं घर पे, ओके. सो इसीलिए लड़का बोल रहा है कि एक चिमनी ऐसा भी है नगर में जहाँ पे तुम कभी भी नहीं गए. तुम अगर कभी जाओ उसमें तो तुम्हें क्या मिलेगा, एक कमरा मिलेगा जो कि है ऑल बेयर, मीन्स इट्स कम्प्लीटली एम्प्टी, खाली पड़ा एक कमरा मिलेगा. नॉट अ स्टॉकिंग कुड यू स्पाई, मैटर्स नॉट हाउ यू माइट ट्राई. अभी लड़का बोल रहा है कि एक भी स्टॉकिंग तुम्हें वहाँ पे नहीं मिलेगा. मैटर्स नॉट हाउ यू माइट ट्राई, कितना भी तुम कोशिश कर लो, कितना भी ढूंढ लो, यू वुड नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ स्टॉकिंग देयर. स्पाई मतलब पता है ना, सी या स्पॉट, मीन्स एक भी तुम स्टॉकिंग, यू कैनॉट स्पॉट अ सिंगल स्टॉकिंग. इट डजेंट मैटर हाउ मच you try and find, but you cannot spot a single stocking. And the shoes you would find are such as no boy would care for much. And the shoes you would find are such, and the shoes which you would find there are such that no one cares much. Means ऐसे जूते जो मिलेंगे वहाँ पे, एक तो स्टॉकिंग तो एक भी नहीं मिलेगा, और जूते अगर मिले भी तो ऐसे मिलेंगे कि कोई लड़का उस मतलब ही डजंट केयर वुड केयर फॉर मच, मतलब उसको फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके जूते कैसे हैं, टॉर्न है या डस्टी है, मडी है, कैसे टूटे फूटे हुए हैं, ये उसको फ़र्क नहीं पड़ता. तो वो बोल रहा है इस स्टैंजा में कि नॉट ए स्टॉकिंग कुड यू स्पाई, मैटर्स नॉट हाउ यू माइट ट्राई, एंड द शूज़ यू वुड फाइंड आर सच एज नो बॉय वुड केयर फॉर मच. मतलब बोल रहा है कि वहाँ पे जाके एक स्टॉकिंग भी नहीं मिलेगा, जितना भी तुम ढूंढने की कोशिश कर लो लेकिन एक भी स्टॉकिंग नहीं मिलेगा. और जूते जो मिलेंगे तुम्हें वहाँ पे ऐसे मिलेंगे कि वो लड़के को फ़र्क ही नहीं पड़ता कि उसके जूते कैसे हैं. इन अ ब्रोकन बेड यू वुड सी समवन जस्ट अबाउट लाइक मी, ड्रीमिंग ऑफ द प्रिटी टॉयज which you bring to other boys, and to him a Christmas seems merry only in his dreams. Now in this stanza the boy is telling that, and in a broken bed you will go and see that you will find there someone just like me who is lying there on the bed dreaming of the pretty and the nice toys, means the nice toys which you bring to other boys, and for him Christmas seems हैप्पीनेस ओनली इन हिज ड्रीम्स नॉट इन रियलिटी. ओके, वो लड़का ये बोल रहा है कि वहाँ पे जाके एक टूटा सा ब्रोकन मतलब टूटा हुआ बिस्तर मिलेगा, और बिस्तर पर तुम्हें ठीक मेरे जैसा ही एक लड़का मिलेगा जो कि सो रहा है और ड्रीमिंग मीन्स सपना देख रहा है, ऑफ प्रीटी टॉयज विच यू ब्रिंग टू अदर बॉयज़. वो अच्छे खिलौने के बारे में सोच रहा है, सपने में देख रहा है जो कि तुम दूसरे लड़कों के लिए लाते हो. एंड टू हिम अ क्रिसमस सेम्स मैरी ओनली इन हिज ड्रीम्स, और उसके लिए क्रिसमस मतलब खुशियाँ सिर्फ सपने में ही, हकीकत में उसको कुछ नहीं मिलता है. ओके, सिर्फ सपने में ही वो क्रिसमस के बारे में सोचता है, अच्छे खिलौने के बारे में और सेंटा से गिफ्ट के बारे में वो सिर्फ सपने में ही सोचता है. हैप्पीनेस जो कि खुशी, मैरीनेस, वो ये सपने में ही उसको मिलता है, रियलिटी में उसको कुछ नहीं मिलता है. ऑल ही ड्रीम्स दैन सेंटा क्लॉज स्टफ हिज स्टॉकिंग विथ, बिकॉज व्हेन इट्स फिल्ड अप टू द ब्रिम आई विल बी सेंटा क्लॉज टू हिम. ऑल ही ड्रीम्स दैन सेंटा क्लॉज stuff his stocking with, because when it's filled up to the brim I will be Santa Claus to him. वो बोल रहा है कि सेंटा क्लॉज अब जब कि वो सपना देखता ही है, तो एक काम करो, तुम उसका स्टॉकिंग जो है मतलब पूरा ऊपर तक भर लो. स्टॉकिंग जो है उसने रखा था ना, एक स्टॉकिंग, हाँ, एक उसके लिए, लड़के खुद के लिए, और एक दूसरे लड़के के लिए जो कि जिसे कि वो जानता है. तो उस स्टॉकिंग को वो बोल रहा है कि सेंटा क्लॉज तुम एक काम करना, उसका स्टॉकिंग एकदम भर देना, ब्रिम अप टू द ब्रिम मीन्स पूरी तरीके से भर देना, ताकि जब मैं उसको ये स्टॉकिंग दूँ, गिफ्ट दूँ, तो मैं उसके लिए एक सेंटा क्लॉज बन जाऊँ. ओके, मीन्स वो लड़का कितना भावुक है कि वो दूसरों के बारे में सोच रहा है. वो ये सोचता है कि स्टॉकिंग्स में सेंटा आके गिफ्ट्स देके जाते हैं, तो वो 2 स्टॉकिंग्स रख देता है वहाँ पे, एक उसके लिए, एक
दूसरे लड़के के लिए जो कि जिसको वो जानता है। तो अभी वो क्या बोलता है कि एक ऐसा भी घर है, एक ऐसा भी चिमनी है सेंटा क्लॉज जहाँ पे कुछ नहीं है, जिसके मतलब जिसके अंदर तुम कभी नहीं गए। अगर वहाँ पे जाते हो तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ मिलेगा टूटे फूटे जूते, और स्टॉकिंग तो मिलेगा ही नहीं, और मिलेगा एक टूटे से बिस्तर पर एक मेरी तरह एक लड़का सो रहा है जो कि सपने देख रहा है, हैप्पीनेस, मैरीनेस और अच्छे अच्छे खिलौने के। हकीकत में उसको कुछ नहीं मिलता है। इसीलिए वो लड़का बोल रहा था सेंटा क्लॉज को, मतलब सोच रहा था कि सेंटा क्लॉज तुम एक काम कर दो, उसका वाला जो स्टॉकिंग है वो पूरी तरह का तरीके से भर दो, ताकि मैं जब उसको ये दूँ गिफ्ट्स तो मैं उसके लिए एक सेंटा क्लॉज बन जाऊँ। Okay, so this beautiful poem is written by Frank Dempster Sherman. Okay, so you need to learn the meanings of the poem, and then yes, all the spellings which are marked you have to learn, and also you have to learn the poem. Eight lines of the poem you learn, okay? So this was your class for today, students. Try to understand the poem. Go again and again through the video if you don't understand for the first time, and learn the poem, learn the meanings and the word meaning which are given in the poem. So bye bye, have a nice day.